Today, the Lord is showing something to us more beautiful because the time of the end is here. Jesus is coming, is close. We don't know how the situations are going to be in the coming days. We don't know. What is happening in our land is only a taste of the worst things that are to come on the earth. जो हमारे दुनिया में होने वाला है, हमारे देश में होने वाला है, ये और भी गंभीर दिन आने वाले हैं इस धरती पर, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस में लिखा है, Amos chapter 8 verse 11, there will be a famine. The days are coming, there will be a famine on this earth, not of food or of water, but a famine of the word of God. ऐसी भूख पड़ेगी, ऐसा अकाल पड़ेगा इस धरती पर, खाने का नहीं, पानी का नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे हृदय में आए। आमेन। द लॉर्ड वांट्स अस टू ग्रो इन हिज वर्ड। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि हम अगर विजय पाएंगे तो सिर्फ विश्वास के द्वारा हम विजय पाएंगे। We are going to win. We are going to be victorious only by faith. जिसके हृदय में विश्वास नहीं होगा वो हार जाएंगे। People who do not have faith in God, they are going to perish. Hallelujah. They are going to perish because they have put their trust in their riches, they have put their trust in their flesh. अपने ही शरीर पर उन्होंने घमंड किया है, अपने ही दौलत पर उन्होंने घमंड किया है, अपने ही दौलत पर विश्वास डाला है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। Hallelujah. Heaven and earth will pass away, Jesus said, but my word will never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। Amen. So whatever we can see with our eyes, it's going to go away. And we should understand that. And Jesus is coming for a bride that is pure, that is holy, that is without blemish. Hallelujah. Jesus is coming for a bride which is prepared for him. परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे दुल्हन के लिए आ रहा है जो दुल्हन उसके लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। जिसके हृदय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं है वो तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया है। Amen. That's why God has given us his word, and without his word we will be lost. Amen. Hallelujah. So in the book of Mark chapter 11 and verse 23, Marcus 11 और 23, okay, Mark 11:23, Jesus said, in fact in verse 22, Jesus answered and said to them, have faith in God. Hallelujah. Verse 22 says, have faith in God. तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर रख। Hallelujah. Everybody say faith. सब लोग बोलो विश्वास। Hallelujah. विश्वास, भरोसा। Hallelujah. The faith that you have to have is in God. So just this one word, have faith in God. Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रख. Do not have faith or do not place faith in the things of this world. इस दुनिया की चीजों पर तुम्हारा विश्वास ना रख. इस दुनिया के लोगों पर तुम्हारा विश्वास ना रख. इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों पर तुम्हारा विश्वास ना रख. Do not keep your trust in anything in this world. Because everything that you see, it is all going to pass away. जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. So have faith in God. Hallelujah. So it is God. परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास रख. 23 says, for assuredly I say to you, whoever says
to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. Hallelujah. So I just want to read to you the Hindi version of it. Praise God. So, assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed. So let's go there in Marcus chapter 11. I'm just reading to you the Hindi version of it. Praise the Lord. Okay. Verse 22 says, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. Then verse 23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. हालेलुया. सो इस पहाड़ को जो कोई कहेगा, ओके, कहेगा, whoever says, okay, so that means you have to open your mouth. जब भी आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आपने अपने मुंह को खोलना है. You got to say it, okay? Whoever says to this mountain is pahad. Now what is your mountain? It is your problem, your situation, okay? जो आपका situation है, आपका जो problem है, उसको कहे कि उखड़ जा और जा समुद्र में जा पड़, ओके? और अपने मन में संदेह ना करते, अपने मन में डाउट ना करते. That you should not doubt in your heart, but believes those things. विश्वास करे जो कुछ आप कहते हैं वो हो जाएगा, वो आपको मिलेगा. Whatever you say, you can get it. Whatever you say, you will get it. Whatever you say and you do not doubt in your heart. संदेह ना करना मन में. So now the question is here, Jesus is saying, if you have faith and you do not doubt. So doubt जो होता है हमारे मन में, जो संदेह होता है, वो क्यों आता है? Why does that doubt come? And today I want to talk to you about feelings and faith. Okay, your feelings and your faith. आपकी जो भावना है और आपका जो विश्वास है, ये दो अलग चीज होते हैं. The feeling is different and the faith is different. Hallelujah. तो कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं परमेश्वर पर, और परमेश्वर को बहुत ही दुख होता है. When we do not trust him, the Lord is very, very hurt about it. And there is a scripture, and I want you to go to that scripture. It says in the book of Malachi chapter 2 verse 17. Malachi chapter 2 verse 17. You have wearied the Lord with your words. Yet you say, in what way have we wearied him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or, where is the God of justice? Just bear with me as I read the Hindi version of it. The book of Malachi, chapter 2, and it's in verse 17. तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, यानी दुख दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बातें में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है. और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? Listen carefully. The Lord is saying you have wearied the Lord
we have grieved the Lord. So many times we have grieved the Lord. हम परमेश्वर को इतना दुख देते हैं. कैसे? हमारे बातों से. क्योंकि हमारे बातें जो आते हैं परमेश्वर को दुख देते हैं. कैसे बातें हमारे मुंह से निकलती है? You know, we say these things out of doubt, out of the feelings that we have. We have to change our feelings from the negative feeling to the positive feeling. We got to put this doubt and change it into faith. And I will tell you how to do it. Okay, but it says here, you have wearied the Lord. हमने परमेश्वर को दुख दिया है ये इस बातों से. कौन सी बातों से? कि तू कहता है in what way have we wearied him? कैसे हमने परमेश्वर को दुख दिया है? कैसे हमने उसको उकता दिया है? In what you say? Everyone who does evil is good in the sight of the Lord. And आम्ही कोकणी भाषेत म्हणता, you know, हे सगळे वाईट करता ते सगळे मनीस, you know, देवाक बरे लागता. हे सगळे जे, you know, त्रास करता मनशांक हे देवाक बरे लागता. You know, we say these words which are not right, and this hurts the Lord. You know, and we say, पळय देव तांकां बरे करता, ते सगळे वाईट करता तांकां देव बरे करता. You know, but that is wrong. That is wrong. Because you don't know the Lord. आमी देवा वळखना, हम परमेश्वर को पहचानते नहीं, हम जानते नहीं, इसलिए हम ऐसे कहते हैं. परमेश्वर हमारा अच्छा परमेश्वर है. God is a good God. Hallelujah. He is also the God of justice. हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है. और यहाँ पर लिखा है और and it says even here, and he delights in them. Everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. जो कोई बुराई करता है, परमेश्वर के नजर में ये अच्छा है और परमेश्वर उन लोगों पर खुश रहता है. ऐसी बातें हमारे मुंह से हम निकालते हैं और क्योंकि हमको ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हम डाउट लाते हैं. हमारे मन में नेगेटिव सोच आते क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है. एंड द बाइबल सेज इन 1 John 4:18, इट्स अ परफेक्ट लव ऑफ गॉड दैट कास्ट आउट एवरी फियर. ये जो परमेश्वर का सिद्ध प्यार है वो सारे भय को निकाल देता है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैन नॉट हैव फियर एंड फेथ लिविंग इन द सेम हाउस, लिविंग इन द सेम लाइफ. That is why, you know, it will be very difficult for you when you are a person of faith and you are talking to somebody who does not have faith. That person has the ability to dampen your faith. You know, अगर आप विश्वास का व्यक्ति है और अन्य विश्वास के लोगों के साथ आप चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं और उनकी बातों में आप आते हैं, उन लोगों को आप पावर देते हैं, उनको आप what do you call it, you give them permission, you know, आप उनको इजाजत देते हैं आपके अंदर जो विश्वास है वो निकालने के लिए. Are you getting this? So when you are a person of faith, you cannot walk with a person who is all the time fearful. You got to understand this. You need to increase your faith in God. Hallelujah. So परमेश्वर को बहुत सारा दुख होता है कि हम लोग उसके विरुद्ध ऐसी बातें करते हैं. परमेश्वर कहाँ है? न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है? Where is the God of justice? हुई हा देव निदला, देव किदे पोईता, देवा के सगळे बरे लागता, हे सगळे कोत्ता ते, हे वाईट कोत्ता ते देवा के बरे लागता. अशें आमी आमच्या तोंडांतल्यान जेन्ना म्हणटाव तेन्ना आमी देवाक दूख दिताव की आनी तेन्ना आमी देवाक अशें म्हणटाव की आमकां भावाटना की तूं आमचो मोग करता. हाका लागून तुज्या मनान दुबाव आसा. आनी जेजून कितें म्हटलां, जितले पावटी तू मनान दुबाव दवरी नासतना या दोंगराक तू म्हणटलो, दुबाव दवरी नासतना या दोंगराक तू म्हणटलो उठ, यू नो, मुंदान साण तू उमटून वाच आनी दोरयान पड, अशें जातले. ऐसा ही होगा जो आप बात करते हैं, लेकिन आपके मन में डाउट नहीं करना चाहिए. हालेलुया. सो ये डाउट क्यों आता है? Why is this doubt coming? It is because you really do not have the faith in the love of God. आपको परमेश्वर के प्यार पर विश्वास नहीं है. Hallelujah. That's what it says. Amen. And then I want to talk to you about Abraham today. Abraham's story. Amen. The Bible says that Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने ये धार्मिकता ठहराई. Amen. You see how
how the Lord spoke to Abraham. You know, God came to Abraham, okay? परमेश्वर अब्राहम के पास आया. Okay, in Genesis chapter 12, God spoke to Abraham like this. And now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse him who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. परमेश्वर ने अब्राम को बोला कि अपना देश जहां पर आप रहते हैं, आपका पिता का घर, ये सब छोड़ दो और उस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा, एक अच्छे देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा. सब कुछ छोड़कर बाहर आ जाओ. अब्राम को उस समय एक भी बेटा नहीं था. अब्राम ऑलरेडी बूढ़ा हो गया था. परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे बड़ा नेशन बनाऊंगा. आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन. बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तेरा नाम को ऊंचा ठहराऊंगा. हालेलुया. This is what the Lord said to Abraham. And you know, when he did not have anything with him, he did not have any child with him, and God said, you just leave. How will you be able to live? What would you do if you were in Abraham's place? अगर आप अब्राम के जगह में होता और परमेश्वर आपके साथ बात करता और कहता आपको कि आप छोड़कर चला आओ, बाहर छोड़, आपका घर छोड़ो, सब कुछ छोड़कर बाहर चले आ जाओ, मैं तुझे लेके जाऊंगा. How can you do that? क्या आपको ऐसा विश्वास होगा अगर परमेश्वर आपको बोलेगा कि सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे आओ? वैसे ही परमेश्वर के चेलों ने किया, right? The disciples of Jesus did the same thing. Jesus said, you follow me, I will make you fishers of men. सब कुछ छोड़कर चले आ जाओ, मैं तुझे ऐसे लोग बनाऊंगा, ऐसे मछुआरे बनाऊंगा जो मनुष्य को पकड़ेगा. उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब्राम ने उसका पूरा देश ही छोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, only on the word of God he listened to the word. उसके वचन को उन्होंने सुना और उन्होंने विश्वास कर दिया. Isn't that beautiful? लेकिन ऐसा ये नहीं है कि अब्राम को कुछ फीलिंग्स नहीं था. It's not that he did not have any feelings. He did have feelings and God respects our feeling. परमेश्वर हमारे भावनाओं की भी कदर करता है, लेकिन परमेश्वर बहुत ही पेशेंट है हमारे साथ. आमेन. परमेश्वर चाहता है कि अगर हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान हो तो, लेकिन ये राई का दाना हम अगर मिट्टी में डाल देते हो तो उग जाता है और वो बड़ा वृक्ष हो जाता है, राइट? सो इवन इफ यू हैव अ फेथ एज अ मस्टर्ड सीड, इट शुड ग्रो. इट शुड बी अ ग्रोइंग फेथ, not keep your faith only that much. Hallelujah. My dear people of God, I'm speaking to you today. There are people who are watching me, and God has called you to do great things for Him. And if you are not going to grow your faith, you cannot do great things for Him. Men of faith are men of great works. Hallelujah. Men of faith can do great things. Men of faith, women of faith. Hallelujah. विश्वास के व्यक्ति होना चाहिए. Hallelujah. Man and women of faith. Praise the Lord. Hallelujah. अगर विश्वास हो तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. Amen. So अब्राम ने क्या किया? अब्राम ने अपना गांव छोड़ दिया. He left everything, and he obeyed the Lord. He did not know where he was going. He did not know where he was going. I'll read to you in Hebrews 11 what it says about Abraham. Amen. If you have your Bibles, I want you to go with me. Otherwise, just listen to the word of God. Amen. Praise God. Okay. It says in Hebrews 11 about Abraham. See, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place where he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he went. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hebrews chapter 11. I want to read it to you in Hindi. Please excuse me because I'm reading Hindi, because most of the people understand Hindi who are watching online. Hebrews chapter 11 verse 8 says, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया
जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। हालेलुया। वो नहीं जानता था वो किधर जा रहा है तो भी निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। Then he says, by faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in the tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किया हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के विरास थे, तंबुओं में वास किया। Oh my God, can you believe that? He lived in tents. Nowadays we want houses, we want beds, we want mattress, we want all the bedsheet and the pillows and the AC and all that. But can you believe it? God said to Abraham, leave your house, and he just left, and all he had was tents. सिर्फ तंबू था उसके पास, वो तंबुओं में रहने लगा क्योंकि उसको परमेश्वर पर इतना विश्वास था। उसके वचन पर उन्होंने विश्वास किया। आमेन, हालेलुया। तो that is the first time he had faith, and then he had to have the faith because he had to have a son. परमेश्वर ने उसको कहा कि आपको बच्चा होगा, right? Then we see in Genesis 15. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." Hallelujah. मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा इनाम हूँ. Praise the Lord. आप डरना नहीं. See, God is understanding our feelings. So every time He will come and He will encourage us. Do not fear. आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. God is so good. He is coming to give us courage. He knows our feelings. He remembers we are made out of dust. वो जानता है कि हम धूल से बनाए हुए इंसान हैं. Amen. आमका मातीयेची केल्या म्हणून ताका खबर आसा. Amen. वो जानता है सब कुछ, इसलिए वो हमारे फीलिंग्स का भी, भावनाओं का भी कदर करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम भावनाओं से बाहर आ जाए. He wants us to come out of those feelings and just trust Him. उसके ऊपर विश्वास करें. Amen. So then verse 4 says, "Behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir." Then he brought him outside and said, "Look now towards heaven and count the stars, if you're able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted to him for righteousness. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God came to Abraham and He said to him, "I am going to bless you with a child." He said, "Look at the stars. अब तारे को गिन सकते हैं तो गिनो. मैं तो तुम्हारा वंश इतना मैं बढ़ाऊंगा." और यहाँ लिखा है कि अब्राहम ने उसके ऊपर विश्वास किया. He believed in the Lord. और उसने ये उसके विश्वास को धार्मिकता ठहराई. Praise the Lord. There's such a deep meaning in that, but I will not go there now. Okay? But then something happened in Abraham's life. You know, Abraham has his wife Sarah, and Sarah began to speak to him. Really, did God say that to you? That God, you know, is going to bless you and you are old. अब बूढ़ा हो गया है, मैं भी अभी बूढ़ी हो गई हूँ, हमको बच्चा ऐसा कैसा होगा? So Sarah talks to Abraham, and she says that you lie with the maid जो हमारे घर में काम कर रही है, उसके साथ आप संबंध रखो, और जो बच्चा उसके द्वारा पैदा होगा वो ही हमारा वारिस बन जाएगा. ऐसा उसने कहा. किसने कहा? उसकी बीवी ने कहा. एंड देन अब्राहम का विश्वास था, लेकिन उतना भी नहीं था, तो उसका विश्वास बढ़ नहीं गया था. उसको विश्वास था परमेश्वर पर, लेकिन उन्होंने अपने बीवी का सुनकर ऐसा ही किया, और उसके नौकरानी जो थी उनके घर में उसके साथ संबंध रखने के बाद उसको एक बच्चा हुआ. फिर परमेश्वर उसके पास वापस आता है. In Genesis chapter 17 and verse 18, "And Abraham said to God, Oh, that Ishmael might live before you." Then God said, "No,
Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. I want to read to you verse 15, okay? God said to Abraham, as for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. And I will bless her and also give you a son by her. And I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be from her. This is so deep and so beautiful. You must focus on the word of God as I'm reading to you. Do not get distracted. Okay, listen to this. If you keep your eyes on the word, if you read the word is supernatural. As you keep reading it, जैसा आप वचन पढ़ते हैं ना, आपके अंदर कुछ तो हो जाएगा. आमेन. तो आप सुन ले वचन को. Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old, and shall Sarah who is 90 years old bear a child? परमेश्वर अब्राहम के पास आ गया जब उसको ऑलरेडी इस्माइल हुआ था. उस नौकरानी के द्वारा उसको इस्माइल पैदा हुआ. परमेश्वर अब्राहम के पास वापस आता है और कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा. आई एम गोइंग टू ब्लेस यू. तेरे डिसेंडेंट्स को, तेरे बच्चे जो होंगे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा. तो अब्राहम कहता है इस्माइल है ना, नहीं, सारा के द्वारा, आपके बीवी के द्वारा एक बच्चा होगा और मैं उसको ब्लेस करूंगा. और परमेश्वर ने ये कहा और अब्राहम को हंसी आ गई. ही लव्स, अब्राहम फेल ऑन हिज फेस. वो अपना चेहरा जमीन पर लगाता है और हंसता है अपने मन में. दैट इज हिज फीलिंग. एवरीबॉडी से फीलिंग. It was a feeling because he was human and his natural reasoning was coming. जैसा विश्वास है लेकिन उसका नेचुरल रीजनिंग भी आ जाता है. There is a struggle there and he goes and he laughs. उसके अंदर वो हंसता है. क्या अभी 100 साल का ऑलरेडी हो चुका हूँ और सारा जो है ऑलरेडी वो 90 years old है, उसको कैसा बच्चा हो जाएगा? और वो हंसता है. और परमेश्वर कहता है सारा योर वाइफ शैल बेयर यू अ सन. उसको बच्चा होगा, उस आपके बीवी को बच्चा होगा. Your wife will have a son even if she is 90 years old and you are 100 years old. Abraham, hallelujah. परमेश्वर आपके फीलिंग्स को पहचानता है, वो जानता है आपके फीलिंग्स को, वो जानता है. फिर भी वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आज आया है. I don't know what is your impossible situation and I don't know whether you have laughed about your situation. Will really this work? But God is saying to you that it is going to happen. Hallelujah. कितना भी impossible हो वो possible हो जाएगा. Hallelujah. Praise the Lord. So now say faith. Say faith. Hallelujah. You got to increase your faith. So what Abraham does, वो क्या करता है? वो हंसता है और परमेश्वर कहता है आपको जब बच्चा होगा आप उसको ईसाक नाम देगा. ईसाक यानी हंसी. Isaac means laughter. You know why? Because Abraham laughed. Because Abraham laughed. उसने वो हंसा ना, इसलिए Isaac यानी laughter. Laughter यानी हंसी. Amen. That's what he says. You are going to name him that. क्योंकि जब भी आप आपके बेटे को पुकारते हैं तो वो आपको याद रखेंगे. I think this is the reason why that name came. जब भी आप आपके बेटे को देखेगा ना तो आपको याद आएगा कि जो impossible था और आप हंसा था, ये possible मैंने कर दिया. Praise the Lord. Hallelujah. You who is watching me today, you are looking at your situation today which is impossible for you. आप जो आपकी परिस्थिति को देख रहे हो वो impossible देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है देखते रहो कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को कैसे बदलेगा. अगर आप विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है. Amen. And stay with me. I got something beautiful for you at the end of this word. Praise God. Okay. So, and he says, I will establish my covenant with him for an everlasting covenant with his descendants after them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord.
Praise the Lord. And then something beautiful happens in Genesis chapter 22. उत्पत्ति का 22 में और कुछ सुंदर हो जाता है. अभी अब्राहम को ऑलरेडी उसका बेटा हो गया है. He's already got Isaac and now Isaac is grown. वो इसाक जो है वो अभी बढ़ गया है. ओके, तो अभी परमेश्वर उसके विश्वास की परीक्षा लेने आता है. ओके, verse 1 says, Genesis 22 verse 1 says, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. God tested Abraham. Everybody say, God tested Abraham. Okay, hallelujah. Now say with me, my faith will be tested. My faith will be tested. If you say you got faith, your faith will be tested. अगर आप कहता है कि मेरे अंदर विश्वास है, तो आपके विश्वास का परीक्षा होगा. And nobody likes exams. किसी को भी एग्जामिनेशन पसंद नहीं है. Nobody likes exams, but exams are important and tests are important to prove whether whatever you studied is in you or not. Hallelujah, praise the Lord. आपका विश्वास की परीक्षा हो जाएगी. अगर परीक्षा नहीं होता तो पता नहीं चलेगा जो आपने स्टडी किया है, आपके मसीही जीवन में जो आपने स्टडी किया है वो कहाँ चला गया, वो पता नहीं चलेगा. राइट? So many people say I got faith and they come to church, but your faith will be tested in the fire. Faith is not faith until it is tested. Hallelujah. Faith is not faith until it is tested. जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाता वो विश्वास नहीं है. हालेलुया. सो ये टेस्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अभी परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता ठहराया. राइट? ही अकाउंटेड हिज फेथ, हिज बिलीफ एज राइचियसनेस. लेकिन अब भी परमेश्वर खुद ही उसकी परीक्षा करना चाहता है. आमेन. वेरियस रीजन फॉर योर फेथ इज टेस्टेड. बहुत सारे रीजंस है कि आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है वो उसका परखा जाता है. वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव दैट Abraham's faith was tested was it could be written there for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए ये लिखा जाएगा कि अब्राहम का विश्वास जो है उसको परखा गया, उसको टेस्ट किया गया. ये लिखा है. और अब्राहम कैसे इस टेस्ट में गया और वो पास भी हो गया. और अगर अब्राहम को ऐसा हो सकता है तो आपको भी ऐसा हो सकता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा. Okay, उसने कहा here I am. Right? So when God calls you and you have an encounter with him, it's like you say here I am, and you are so happy that God's presence is coming to you. God's presence is feeling you. Everybody likes that. बहुत अच्छा लगता है लोगों को. कलीसिया में आते हैं और अपने अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करते हैं और उसकी उपस्थिति में वो भर जाते हैं. They get filled with the presence of God. They say, wow, what a presence, what a fire, what a power. You love that what is happening to you. So here I am, Lord. हम गाना भी गाते हैं, here I am, मैं हूँ यहाँ. लेकिन जब ऐसा होता है तो परमेश्वर कहता है आपका विश्वास परखने के लिए मैं आऊंगा. Now many times when you hear the word of God on Sunday, you will go back home and your faith will be tested. Amen? Amen? I know it happens to me and it must be happening to you. मुझे भी ऐसा होता है, आपको भी ऐसा होगा. जब भी आप वचन सुनते हैं और आप कहते हैं कितना अच्छा वचन था. अगर प्रचारक ने प्यार के बारे में प्रचार किया और आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ प्यार रखना है, प्यार करना है, क्षमा करना है, तो ये सब आपको अच्छा लगा, तो आप घर जाते हैं और आपका ये जो वर्ड आपने रिसीव किया है ये वचन को परखा जाएगा. कोई आपके सामने आ जाएगा, आपके ऊपर गुस्सा करेगा और उस समय आपका जो वचन आपने रखा है आपके अंदर वो परखा जाएगा. और आपके अंदर अगर सच्ची में परमेश्वर का वचन घुस गया है आपके अंदर तो ये वचन उस समय
पता चलेगा, तो उस समय आप उस व्यक्ति को क्षमा करोगे. हाँ, right? Amen? Sometimes you don't feel like forgiving, but that's your test. God is not going to force you. It's your test, right? Amen. But it's going to happen to you. Every time you hear the word of God, you will be tested on that word of God. Hallelujah. आज मैं ये वचन बात कर रही हूँ, परमेश्वर ये वचन की परीक्षा लेंगे आपसे. Amen. कुछ तो परिस्थिति आ जाएगी और उस परिस्थिति में आप अंदर है ना, आपका परखा जाएगा. God is going to test you. Amen. So Abraham was tested. And how was he tested? God says to him, take now your son, your only son Isaac. See, isn't that good? God is like making it very sure to tell him, it's your only son. Take your only son. एक ही बेटा है आपका, आपके एक ही बेटे को. God is saying this on purpose. I'll tell you why. He said, take now your son. आपके बेटे को ले, आपका एकलौते बेटे को ले, इसहाक को ले, whom you love. आप उसे कितना प्यार करते हैं, उसको लेके जा. Go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains in which I will show you. I will read it to you in Hindi. Praise God. Are you enjoying the word? Say amen. Say hallelujah. Tell me something. Come on. Type something there. Are you enjoying the word of God? Hallelujah. Praise the Lord. So उत्पत्ति का 22 इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि है इब्राहिम. उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तुम प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. हालेलुया. मैं तुझे लेके जाऊंगा. आई एम गोना टेक यू टू दैट लैंड. आई एम गोना शो यू. मैं तुझे दिखाऊंगा कहां लेके जाना है, लेकिन अपने एकलौते पुत्र को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं. ये मन में रख, कीप दिस इन माइंड. गॉड सेड टू हिम, इज योर ओनली सन, योर ओनली सन, द सन whom you love. Okay, take him to the place where I'm going to show you. Put him as a sacrifice. So see what he does. Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. So Ibrahim बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली. तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी. सो सब तैयारी किया. अब्राहम ने लकड़ी लिया, अपने बेटे को लिया, 2 सेवक को लिया, गधे को लिया और चलने लगा. ओके, एंड देन तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा. उसको 3 दिन लगे वहां पर पहुंचने के लिए जिस स्थान में परमेश्वर उसको दिखाया. ओके, now verse 5 says, and Abraham said to his young man, abide here with the donkey, and I and the lad will go there and worship and come again to you. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा. Oh, this is so good. He's saying you stay here only with the donkey. He's telling the two men, उस गधे के पास उस 2 सेवक को रखता है और उनको क्या कहता है, देखो मैं और मेरा बेटा जा रहा हूँ परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए हम उस पहाड़ पर जा रहे हैं और हम वापस आ जाएंगे. हालेलुया. हम दोनों वापस आ जाएंगे. परमेश्वर ने उसको क्या कहा, इसहाक की होम बलि चढ़ाओ, इसहाक को बलिदान करो. लेकिन अब्राहम क्या कहता है, हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं और हम दोनों वापस आ जाएंगे. ये है विश्वास. हालेलुया. दिस इज फेथ. एंड इफ यू रीड इट इन Hebrews chapter 11, देखो जो पुराने नियम में है
ये सेम थिंग हमारे न्यू टेस्टमेंट में है. Amen. It's also there here for us. Hallelujah. Hebrews chapter 11. Thank you, Jesus. Hallelujah. Are you being blessed? Say, I am blessed. Amen. Say, I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay. Hebrews 11 verse 17 says, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Hallelujah. Thank you, Lord. I'll read it to you from Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Thank you, Jesus. Verses 17. Okay. विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में ईसाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि ईसाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांता की रीति पर वह उसे फिर मिला. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I love the word of God. Do you love the word of God? Type over there, I love the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So this is so good. You know, this is not just a fiction story. This is a fact. ये यहाँ पर लिखा है, और अब्राहम ये जो है उसकी आशीषें हमको यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी मिल चुकी है. तो अगर अब्राहम को ऐसा हुआ है और वो परीक्षा में पास हो गया है, तो आप भी पास हो जाएगा अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो. हालेलुया. सो अब्राहम कैसा पास हो गया इस टेस्ट में, वो कैसा पास हो गया देखो. सो अब्राहम सेड टू हिज यंग मैन, आप यहाँ पर ही रहो. उन्होंने सेवकों को कहा, उस डोंकी के पास, उस गधे के पास उनको रखा और कहा कि मैं और मेरा बेटा जाकर आ जाएंगे, हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं और हम वापस आ जाएंगे. Amen. So that was the faith. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on his son. अभी वो पहाड़ पर चल गए जहां पर कोई उनको दिखाई नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर उनको देखता है. तो उन्होंने क्या किया? What did he do? He took the wood and he laid it down. उन्होंने उस लकड़ी को रखा और लकड़ी के ऊपर उसके बेटे को रखा. And he took the fire in his hand. Okay, verse 6 says, so Abraham took the wood of the burnt offering, he laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. So लकड़ी इसाक पर रखा और ये दोनों चलने लगे. अग्नि को लिया हाथ में, छुरी को लिया हाथ में, और वो दोनों चलने लगे. Okay. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, my father. And he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? ओके. सो ईसाक अभी अब्राहम को पूछ रहा है, देखो लकड़ी है और अग्नि है, लेकिन वो मेमना कहाँ है जिसको हम बलिदान करेंगे? Where is the lamb of the offering? And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. अब्राहम ईसाक को कहता है, परमेश्वर उस मेमने को देगा. Stay with me. Okay, just let me complete this thing. So the two of them went together. अब्राहम ने ईसाक को कहा, परमेश्वर मेमने को देगा बलिदान करने के लिए. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. जैसा परमेश्वर ने कहा उस जगह पर वो पहुंच गए
और उन्होंने लकड़ी को रखा और इसहाक को उस लकड़ी पर डाल दिया और वह तैयार हो गया उसको मारने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए। देखो, और परमेश्वर का दूत आया वहां पर। द एंजल ऑफ द लॉर्ड कॉल टू हिम फ्रॉम हेवन। जैसे वो तैयार हो गया, स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत ने उसको कहा स्वर्ग से, अब्राहम अब्राहम। सो ही सेड, हियर आई एम। एंड ही सेड, डू नॉट ले योर हैंड ऑन द लैड or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. आप अपने बेटे को मत मार, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार करता है। Now I want to tell this to you, every one of you who are watching. Hallelujah. Abraham had feelings. Say feelings. But he had faith. God understood his feeling, and God knew that Abraham would pass the test of faith. God understood his feeling. परमेश्वर उसके भावनाओं को समझ सकता है, समझ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना हृदय अब्राहम को खोल दिया। जैसे आप परमेश्वर को ढूंढते हैं ना, आप परमेश्वर को ढूंढते हैं ना, परमेश्वर आपके जैसे को भी ढूंढ रहा है। You are searching for God. God is searching for someone just like you. Someone just like you. God is searching for those who are searching for Him. God is searching for those whose hearts are right with Him. अगर आपका हृदय सही है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आपके परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। God is looking at you and God wants to open His heart to you. Hallelujah. परमेश्वर अपना हृदय आपको खोलना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, आपके इकलौते पुत्र को लेके जा, और जिससे आप बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था। देखो देखो, मेरा जो है मेरा इकलौता पुत्र, मैं एक दिन उसको दूंगा और मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं अब्राहम। मुझे भी ऐसा दुख होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरे इकलौते पुत्र को मैं भी दूंगा, दुनिया के लिए मैं बलि चढ़ाऊंगा। I want to show you Abraham. God is looking for a friend. God is looking for someone that he can trust. God is looking for someone that has faith in him. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके दोस्त बनेंगे, जो परमेश्वर अपना हृदय खोलकर आपके साथ बात करना चाहता है। God is wanting to talk to you. But you must keep your trust in God. You must understand that God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमेन। So बाइबल कहता है इब्रानी का 11 और 17 और 18 में, अब्राहम को विश्वास था, अगर मैंने उसको मारा भी तो, अगर मैंने इसहाक को मारा भी तो मेरा परमेश्वर मुझे वापस लौटाएगा मेरा बेटा। हालेलुया। और ऐसा ही हो गया। उसके हृदय में, अब्राहम के हृदय में ऑलरेडी उन्होंने इसहाक को मारा था। Already he was already dead in his heart. He passed the test. इसहाक ऑलरेडी मर चुका था अब्राहम के लिए। और जब परमेश्वर ने बोला कि आप मत मार उसको, तो ऑलरेडी उसको दृष्टांत में ऑलरेडी उसको मिला। You know, in figurative sense, he already received Isaac like a resurrected person. It's like he killed Isaac. ऐसा अंदर मन में ऑलरेडी उसने मारा उसको, लेकिन अभी उसको वो जिलाया हुआ मिला। He got him alive back again. It was like that. ऐसा उसका विश्वास था परमेश्वर पर, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. God is looking for such people. My dear people of God, you will have lot of feelings, and your feelings, if you do not get your feelings in line with the word of God, your feelings are going to put you down, are going to get you into depression, are going to get you into discouragement. अगर आपकी जो भावना है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अलाइनमेंट में नहीं लगाते, अगर आप नहीं जानते इस वचन में क्या लिखा है, तो वचन कैसे बढ़ेगा? तो विश्वास कैसा बढ़ेगा अगर वचन आपके अंदर नहीं है? तो how will the faith grow if the word is not in you? अगर आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? और कैसे आप जान पाओगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है अगर आप नहीं जानते इसमें क्या लिखा है?
अगर शैतान आपकी बर्बादी करेगा तो ऐसे आपकी बर्बादी करेगा कि आपके इग्नोरेंस के द्वारा। इग्नोरेंस इसका मतलब है अनजाने। आप नहीं जाने कि वचन में क्या लिखा है। अगर आप नहीं जानता वचन में क्या लिखा है तो हमेशा आप आपके फीलिंग्स में आ जाएंगे। तो ऐसा आप बोलेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उधर नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। आप ऐसे ही नेगेटिव बात करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि इधर क्या लिखा है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। That is what is written in the word of God. I can do all things through Christ. Okay. Hold on to this word. Okay. Now, if you say, I am getting scared of something, मुझे डर है, इस बात की मुझे डर है, उस बात की मुझे डर है, इस व्यक्ति का डर है, शैतान का डर है, जादू टोना का डर है, मुझे ये डर है, वो डर है। इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुझे संयम का आत्मा दिया है। I've given you my spirit of control. I've given you my spirit of love. I've given you my Holy Spirit. मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है। आप अगर नहीं जानते तो आपके अंदर डर ही रहेगा, और जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं हो सकता है। इसलिए कितने विश्वासी लोग आज तक ऐसी हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है वचन में क्या लिखा है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। हाँ, ये सही है, उसके हाथ में ये भूख नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा था और ये वचन पर उन्होंने विश्वास किया जो परमेश्वर ने पर्सनली बात किया उसके साथ। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके साथ पर्सनली बात कर रहा है। हालेलुया। अगर ये पर्सनल वर्ड, ये जो लिखा हुआ वर्ड, ये पर्सनल वर्ड हो जाए आपके लिए, ये रीमा वर्ड हो जाए आपके लिए, एक प्रकाशन बन जाए आपके लिए, तो इस प्रकाशन को पकड़ ले, आपके विश्वास को बढ़ाओ, आपके फीलिंग्स को नहीं, आपके फीलिंग्स को नहीं। यू गॉट टू से दैट माय फीलिंग्स आर हियर टुडे एंड गॉन टुमारो। आज आपका फीलिंग्स होगा। यू नो, सम पीपल से एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर मी, आई एम सो हैप्पी, आई हैव फेथ इन गॉड, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा विश्वास कितना है परमेश्वर पर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है, तो मुझे विश्वास है। लेकिन जबकि उनकी परिस्थिति बदल जाती है, इफ समथिंग नेगेटिव हैपेंस, उसके एक नकारात्मक वाली कुछ सिचुएशन आ जाता है उनके जीवन में और कुछ दिखाई देता है उनके आंखों में, सम नेगेटिव सिचुएशन, इमीडिएटली देयर कन्फेशन इज रॉन्ग। वो जब बोलते हैं उनकी बात ही गलत होती है क्योंकि वो बात उनके नेगेटिव फीलिंग्स के द्वारा बाहर आती है और वो कहते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस कर रहा है, मुझे ब्लेस नहीं कर रहा है, परमेश्वर कब न्याय करेगा, व्हेन विल गॉड डू जस्टिस, गॉड इज नॉट डूइंग जस्टिस फॉर मी, गॉड इज डूइंग इनजस्टिस फॉर मी, व्हाई इज गॉड डूइंग दिस टू मी, परमेश्वर ऐसा मेरे जीवन में क्यों कर रहा है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपका विश्वास कहां चला गया? आपका विश्वास कहां चला गया? सब कुछ अच्छा हो रहा था तब आपने बोला कि आपका विश्वास है परमेश्वर पर, लेकिन आपकी परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई, थोड़ी सी पलट गई, तो आपने आपके मुंह से क्या बोला? व्हाट डिड यू से विथ योर माउथ? योर फीलिंग्स, योर नेगेटिव फीलिंग्स दैट यू कन्फेस आउट ऑफ योर माउथ। एंड व्हाट डिड जीसस से? And Jesus says that out of the abundance of the heart the mouth will speak. जो आपके हृदय में है वो बाहर आ जाएगा। क्या है आपके हृदय में? क्या है आपके हृदय में? जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आसान है बोलने के लिए मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। ये फीलिंग से हम नहीं चलते। God's children don't walk by feelings, they walk by faith. Hallelujah. 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 Praise the Lord. God's children don't walk by feelings. I feel this. I don't feel like going to church. I feel like going here. I feel like doing this. I feel like this boy is for me. I feel like this girl is for me. I feel. Don't go by your feelings. जब तक आपकी भावना परमेश्वर के वचन पर अलाइनमेंट नहीं होती, अलाइनमेंट में वचन कहता है और आप कहता है, एक होना चाहिए। Whatever the word is saying and you are saying, if that is not one, then you will do big mistakes. हम सब ने ऐसी गलतियां किया है हमारे जीवन में, हम सब की परीक्षा हुई है और हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहती हूं
कि मैं हर एक परीक्षा में पास हो गई। नहीं, हमारी भी परीक्षा हो गई, हम भी गिरे, हमने भी गलती की, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही आया हमारे साथ, हमारे पास, जैसे अब्राहम के पास आया। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय को जानता था और परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। अगर आपकी गलती हो गई, अगर आपका विश्वास परखा गया और आप फेल हो गए, फिर भी परमेश्वर आपके भावनाओं को जानता है। He knows it। और वो इतना ही आपको हौसला बढ़ाने के लिए आया है। He has come to give you courage and he is saying to you today, my child, look at me। मुझ पर नजर रख। Hallelujah। Romans 10:17 says faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the word of God। Hallelujah। Faith comes by hearing the word of God। Amen। But it doesn't stop there। It says faith comes by hearing and hearing। वचन सुनने से और सुनने से और सुनने से विश्वास आता है। Hallelujah। Hallelujah। Now I told you, wait with me, I'm going to read to you a very beautiful scripture that is going to encourage you. Praise the Lord। That is written in Malachi, in the book of Malachi, the last book of the Old Testament. Okay, and it says, chapter 2, Malachi chapter 2, verse 7, it says, for the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts। Hallelujah। Okay, I read that to you. Malachi, very good. Chapter 2, praise God। Chapter 2, verse 7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। Hallelujah। Hallelujah। See, listen to this, listen to this। For the lips of a priest should keep knowledge। What should you speak? आपके मुंह से क्या बाहर आना चाहिए? नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ज्ञान। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर की बुद्धि आपके मुंह से बाहर आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपकी फेथ, आपका विश्वास परखा जा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई योर फेथ इज बीइंग टेस्टेड। दैट इज द रीजन व्हाई गॉड इज सेइंग डोंट वॉक बाय योर फीलिंग्स। हालेलुया। Because of these feelings, you are going to speak something wrong out of your mouth। Hallelujah। जब आपको गुस्सा आता है, वो भी एक फीलिंग है आपका। अगर ये गुस्सा जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो आपके मुंह से गलत बातें आ जाएगी। और you are a priest। आप एक याजक है। Say I am a priest। Say I am a priest। Hallelujah। Revelation 1:6 says that the Lord has made us kings and priests। 1 Peter chapter 2 verse 9 says that you are the royal priesthood। आप एक याजक है। You are a priest। You are a messenger of the Lord। Say, I am a messenger of the Lord। Hallelujah। You are a messenger। Amen। आप एक दूत है, आप एक सेवक है परमेश्वर का, एक मैसेंजर है जो परमेश्वर का सुनता है और लोगों को देता है। और ये करने के लिए आपको स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। You don't need a stage to become a messenger of God। You can be a messenger of God in your house। Hallelujah। You can be a messenger of God at your workplace। आप परमेश्वर का दूत, एक मैसेंजर आप बन सकते हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं। आपके घर में, आपके परिवार को आप परमेश्वर की मैसेज दे सकते हैं। Amen। You are a priest। So your feelings, when you are going by your feelings, and if your feelings, listen carefully,
If your feelings are not in line with the word of God, the wrong word will come from your mouth. आपकी भावना वचन के मुताबिक होना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. आपका शारीरिक मन जो है वो डिसिप्लिन करना चाहिए. You got to discipline your mind and get your mind and your spirit in line. Hallelujah. In the word of God. तभी आपके अंदर वचन आ जाएगा और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा. What is inside will come out. If you are full of fear, you're going to speak fear. जो दुनिया में हो रहा है, हमारे गांव में, हमारे देश में जो हो रहा है, हमारे गोवा में भी हो रहा है, ये सुनकर 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 क्या पैदा होता है? डर पैदा होता है. और ये वचन सुनकर 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 क्या पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है. You hear the word, hear the word, hear the word, hear the word. What you will receive? Faith. And if you hear the news, hear the news, hear the news, hear the news, what you will receive? Fear. It's good to hear the news, but it's so much better to hear the good news. Hallelujah. You can hear the news. आपको खबरें सुननी है क्योंकि देश में क्या हो रहा है आपको पता चलना चाहिए. हमारे गोवा में क्या हो रहा है आपको पता चलना चाहिए. लेकिन आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. आपका ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए. क्योंकि अगर आप बैड न्यूज सुनेंगे तो आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा. तो आपके अंदर से जो बाहर आता है वो डर आ जाएगा. डर के द्वारा आप बहुत कुछ रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग निर्णय लेंगे. लेकिन विश्वास के द्वारा आप सही निर्णय लेंगे. You will make the right decisions. You are a priest. That's why your faith is tested. Don't go by your feelings. Go by faith. Hallelujah. People of God are not meant to live by feelings. They are meant to live by faith. We walk by faith, not by sight. परमेश्वर का एक चेला था ना, थॉमस. उन्होंने विश्वास नहीं किया. उन्होंने संदेह किया. उसके मन में डाउट किया कि जब परमेश्वर यीशु मसीह आकर उनको दिखाई दिया, Jesus showed himself after the resurrection to his disciples. Thomas did not believe it because he was not there. उन्होंने देखा नहीं ना, तो वो वहां पर नहीं था. तो उसके मन में डाउट आ गया, संदेह आ गया. तो जब वो वहां पर आ गया, चेलों ने उसको कहा कि यीशु मसीह आया था, हमारा मसीहा आया था यहाँ पर, वो जिंदा है, वो जिंदा है. नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसको नहीं देखता, जब तक मैं उसके गांव में मेरी उंगली डालकर मैं फील नहीं करता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. तो यीशु मसीह वहां पर आता है और उसको कहता है, देखो थॉमस, मैं यहां पर हूं, लाओ तुम्हारी उंगली मेरे घाव में डालकर देखो. और थॉमस आकर ऐसा ही करता है और कहता है, मैं विश्वास करता हूं, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, वो कहता है. और यीशु मसीह उसको कहता है, जीसस इज सेइंग टू यू, यू बिलीव्ड बिकॉज यू सॉ, बट ब्लेसेड आर दोज हु डोंट सी एंड येट दे बिलीव. धन्य है वे लोग जो दिखाई नहीं देता उसको, फिर भी वो विश्वास करते हैं. हालेलुया. आज आपकी शायद एक परिस्थिति है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है. God is saying to you today, are you willing to trust in my love for you? परमेश्वर आपसे प्यार करता है. कभी कभी देर होती है, आपका प्रार्थना आप तक, आपके पास आंसर, जवाब आपको मिलने को थोड़ा समय लगता है. वो जानता है क्यों. उसके ऊपर शक ना करना, उसके प्यार के ऊपर शक ना करना. जो विश्वास करते हैं वो विजय पाएंगे. हालेलुया. जो भावनाओं से जीते हैं वो भावनाओं के द्वारा नीचे गिरेंगे, लेकिन जो विश्वास से जीते हैं वो जीत जाएंगे हमेशा. बड़े बड़े काम वो करेंगे. हालेलुया. Amen. You're going to do great things for God. But the first thing is knowing God. Knowing Jesus is knowing God. Today I want you to open your hearts to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want you to open your hearts to the Lord today. Amen.
How do you know God? How do you know God? आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं? You know God because He is love. He is Jesus. This God loved you so much. He loved you so much. He gave His one and only begotten Son. As God said to Abraham before Abraham took him for sacrifice. God said to Abraham, this is my one and only, it is your one and only Son. You love Him so much. God was opening His heart to Abraham, trying to tell him, one day I will give my only Son, my loving Son, to die for the world. एक दिन मैं भी दूंगा अब्राहम, मेरा पुत्र पूरी दुनिया के लिए. ये मैं तुझे बताना चाहता हूं. परमेश्वर ने अब्राहम को ये एग्जाम्पल दिखाया. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया. God gave His one and only begotten loving Son to die for us, हमारे लिए मरने के लिए. This is how much He loves us. इतना वो प्यार करता है. And the Bible says, if God did not spare His one and only Son, but gave Him up for us all. परमेश्वर ने अपने बेटे को पीछे नहीं रखा, लेकिन हमारे लिए मरने के लिए दिया. इतना वो हमसे प्यार करता है. क्या वो और सारी आशीषें आपको नहीं देंगे? वो देगा, जरूर देगा. आमेन. टुडे अंडरस्टैंड इट दैट गॉड लव्स यू. अपना हृदय खोलो परमेश्वर के लिए. से लॉर्ड फॉरगिव मी फॉर डाउटिंग यू. Forgive me for doubting you, Lord. Forgive me for walking by feelings. मेरे भावनाओं के द्वारा मैं चला हूं, मुझे क्षमा करे परमेश्वर. मैं आज से विश्वास के द्वारा चलना चाहता हूं. I want to walk by faith. Increase my faith, oh Lord. Increase my faith. मेरे विश्वास को बढ़ाओ. Increase my hunger for your word. मेरे अंदर तेरे वचन के लिए भूख को बढ़ाओ परमेश्वर. तेरा वचन है तो विश्वास होगा मेरे अंदर. It's your word that is going to increase the faith in my life, Lord. I am a messenger of the Lord. I am a messenger of the Lord. मैं परमेश्वर का एक दूत हूँ, एक सेवक हूँ, मैं एक याजक हूँ. और मेरे मुंह से लोगों ने परमेश्वर की बुद्धि सुनना चाहिए. Hallelujah. I am a messenger of God. Hallelujah. Hallelujah. You are a messenger of God. Let people hear the knowledge of God from your lips. आपके मुंह से सिर्फ विश्वास, आपके मुंह से सिर्फ वचन लोगों को सुनने दे. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो. Let the glory of God be seen through your life. But this is your life. It is going to be worth it if you live it for Jesus. यीशु मसीह के लिए जिएंगे आप तो सच्ची में आपने एक अच्छा जीवन जिया है. अगर दुनिया के लिए जिएंगे तो आप हार जाएंगे. अगर अपने के लिए जिएंगे तो आप हार जाएंगे. लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए जिएंगे तो आपके जीवन में फायदा है. और आपके लिए परमेश्वर ने एक मुकुट तैयार किया है, क्योंकि आप वफादार रहे. Be faithful to the Lord. Come on, let's worship the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को बाहूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को बाहूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना.
I bless you, people of God, those who are watching right now. Hallelujah. Hallelujah. I speak into your lives today. Be healed in Jesus' name. Oh, be delivered from every evil power right now. Is the word that the Lord sends inside of you. Hallelujah. परमेश्वर अपना वचन को बेचता है आपके अंदर और वचन के द्वारा सारे जंजीरें टूट जाते हैं, सारी बीमारी चली जाती है. I speak into your life. Every sickness be gone. Every kind of heart problems be gone. In the name of Jesus. As you are calling out to Jesus right now. Hampreshiara. Berusi shikana bareseya. परमेश्वर, मैं दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं बात करूं सिर्फ तेरे वचन परमेश्वर. मेरे मुंह से जो निकलता है वो सिर्फ तुझे महिमा देने के लिए होगा परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे राजा और याजक बनाया है. मैं तुम्हारा दूत हूँ. I am your messenger. What comes from my mouth will glorify you. Only the word will come out from my mouth, oh Lord my God. No matter what is happening around me, I will keep my eyes on you. चाहे जो कुछ हो जाए मेरे आजू बाजू में, मेरे देश में, चाहे जो कुछ हो जाए मेरे गांव में, मेरे घर में, फिर भी मेरी नजर तुझ पर परमेश्वर. अब्राहम का परमेश्वर तो मेरा परमेश्वर है. हालेलुया. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है. तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. Come on, sing with me. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. हालेलुया. जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में मेरा कल और आने वाला कल मेरा है. ओ यीशुआ, इसके हाथ में मेरा कल, इसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल तू मेरा है.
Can you sing with me? तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूटे रहेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूटे रहेगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा, मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा, ए खुदा, मेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु, यीशु, यीशु। I pray for each one watching today. The Spirit of the Lord God is upon you. The Lord is with you in your homes. The Lord has chosen you. I declare upon you today, you are the chosen one of God. You are the anointed one of God. I declare upon you today, you are strong in the Lord. I declare upon you today, you are healthy. I declare over you today, every part of your body is functioning normal. Every organ of your body is functioning normal. In the name of Jesus, hallelujah. I declare over you today, the healing and health of our Lord Jesus Christ, hallelujah. I plead the blood of Jesus over everyone watching. Hallelujah. I declare over you today, the black magic cannot work on you. I declare over you today, the evil words, the evil curses cannot work on you. You are the blessed one of God. Say, I am blessed. I am chosen. I am anointed. Say, I am loved by God. Hallelujah. Nothing can change the Lord's love for me. My Lord loves me. Hallelujah. Shabarushina namako. Rekesi karoto roboso. Rebeseke rebeke. Come on, get filled with the Spirit. Come on, open your mouth and begin to speak. Begin to speak. Begin to prophesy over yourself. Put your hand on your head and begin to say that I am a child of God. I am the blessed one of God. The word of the Lord is in my heart. The word of the Lord is in my mouth. Hallelujah. I will pass this test. Hallelujah. Shabaroshinene koresi geraha. Mendorosi konemeseya. Hallelujah. Everything I do is blessed. Hallelujah. Some of you have said bad things over your life. किसी लोगों ने आपके अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर बुरा कहा है. आपने कहा है ऐसा कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ. I cannot do anything good. Whatever I do, it becomes bad. I am a failure. आपने ऐसा कहा है. मैं जो कुछ करता हूँ वो फेल हो जाता है. मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ. Today change your confession. Change your talk. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. आपकी बातें अभी चेंज करो. आपके फीलिंग्स जो है, ये फीलिंग्स अभी परमेश्वर के वचन पर अलाइनमेंट में आप लाइए इस समय और कहे, मैं सक्सेसफुल हूं. बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं जो कुछ करता हूं वो सक्सेसफुल होता है. हालेलुया. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दिया है. मेरे यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं. हालेलुया. मैं किसी चीज को डरता नहीं हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरा साथ देता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. आई एम नॉट फियरिंग एनीथिंग. माय लॉर्ड इज विथ मी. हु कैन बी अगेंस्ट मी? हालेलुया. Hallelujah. I bless you all in the name of Jesus. I bless you all in the name of Jesus. And we pray right now. Can you pray with me for the present situation that is happening in our land? Lord, we speak peace. We speak shalom, Lord God, in the situations that are happening around about us. In the land of Goa, Lord, your peace, Lord God. We speak, Lord God, that the light will come in the situations, Lord God. There will be your light. There will be your peace, Lord. There will be your understanding among the people, Lord my God. Even we pray for Israel, Lord God. We pray for your peace of Jerusalem, Lord God.
Let there be peace in Jerusalem. Let there be your protection, your divine protection for your people. Lord, we pray that innocent people will be saved, will be protected, my Lord God. Raise up. I speak, Lord God, today that you will raise up people, that you will raise up sons and daughters that will go down on their knees and they will pray. परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि ऐसे लोगों को तैयार करे परमेश्वर, कि प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, वो आराधन करने वाले लोग होंगे, जो घुटने टेक कर आपके सामने आ जाएंगे और अपने अपने वेदी को घर में तैयार करेंगे परमेश्वर, कि वो घुटने पर जाकर वो प्रार्थना करेंगे. Lord, they would go down on their knees and they will begin to pray. They will call out to the name of Yeshua. Hallelujah. Thank you, Lord. I speak the blessing of the Lord upon each and every one of you in the mighty name of Jesus. And I say to you, the Lord will provide all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा. हालेलुया. आज हम आपके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं, आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में. आपके परिवार को ब्लेस करते हैं, आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में. आपको किसी भी चीज की गति नहीं होगी. द लॉर्ड इज योर शेपर्ड. यू विल नॉट लैक एनीथिंग इन योर लाइफ. I bless you all in the name of Jesus. Amen.